Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. इन थी मायापुर में और उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। परम गुरु महाराज जी की बायोग्राफी में उनका नाम मेंशन है और तेजपुर के चुनीलाल प्रभु चुनीलाल दत्त जिन्होंने वहां के मंदिर, नाट मंदिर और साधु निवास के लिए सारा योगदान दिया, तो ये जो लोग अमर हो जाते हैं गुरु वैष्णव शुद्ध भक्तों की सेवा करके, इतिहास में अपना नाम स्थापित कर लेते हैं। So we are hearing about how Sri Chaitanya Gaudiya Math started in Sridham Mayapur. Sridham Mayapur, our Param Guru Maharaj Ji established first principal math at Ishodhyan on the bank of Ganga, and this is very, very important place in Mayapur because Isha means Radharani and Udyan means the garden. So it's a garden of Radharani in Navdeep Dham in Mayapur, where our Gaudiya Math was established by our Param Guru Dev in 1956 on a land donated by one Shri Govinda Babu of Calcutta. And slowly they purchased more adjoining land and became a very big mud. But it had a very humble beginning. They started initially in shed, in a you can say thatched hut, not a well constructed Pakka house. So it was a temporary tin shed where they started our Sri Chaitanya Gaudiya Math. Our Param Pujyapad Tureshwari Maharaj initially went with two brahmacharis, and then our Param Pujyapad Bharti Goswami Maharaj also went to Mayapur for establishing our math there. They had great contribution in this endeavor of Param Guru Dev. So 1957, they constructed 2 rooms with bricks, and in one of those rooms, our deities were established. Shri Shri Guru Garang Shri Shri Radha Madan Mohan deities, established by Param Guru Maharaj in association of his all senior god brothers like Param Pujyapad Vaikhanas Goswami Maharaj, Param Pujyapad Bhakti Rakshak Shridhar Dev Goswami Maharaj, and others who did the inaugural ceremony, and all the inhabitants of Navdeep Dham were invited for celebrations, for Mahaprasad. So this is the beginning of Sri Chaitanya Gaudiya Math. Now, there was also opposition. There are always obstacles in great causes. When Jagadguru Srila Prabhupada started preaching in Calcutta, the first rented apartment in Calcutta, so he was going to see a rented
building for renting a building. And while he was walking in the market on the pavement along with his disciples, suddenly a very big balcony of a shop, it fell just in front of Srila Prabhupada. Everyone was shocked. Everyone stopped, but no one was hurt. So everyone got the idea that whether it is auspicious that we are going to start a new Gaudiya Mutt, and suddenly this mishap has happened. But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada immediately remarked, he said, Shreyansi Bahu Vignani. In the great causes, there are always many obstacles. श्रेष्ठ कार्य में बहुत विघ्न होते हैं, ऐसा हमारे प्रभुपाद जी ने कहा। और इस बात की कोई परवाह नहीं की कि बालकनी उनके बिल्कुल सामने ही गिरी थी, बाल बाल बचे थे, लेकिन कोई चिंता नहीं, आगे बढ़िए। और उल्टा डांगा में जो हमारा गौड़ीय मठ पहला स्थापित हुआ, उसी उल्टा डांगा में हमारे परम गुरु महाराज जी ने ज्वाइन किया, और उनके सभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ गुरु भाइयों ने उल्टा डांगा में आके ही प्रभुपाद जी से हरि नाम दीक्षा लेके अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो ये श्रेष्ठ कार्य में विघ्न होते हैं। जब मायापुर में हमारे परम गुरु महाराज जी ने ईशोद्यान में मठ बनाया, तो दूसरे जो पुराने मठ के लोग, उन्होंने कहा कि हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। और फिर तूफान आया और वो टीने भी उड़ गई, घास फूस के छप्पर भी उड़ गए। लेकिन हमारे परम गुरु महाराज जी कहाँ इन बातों से घबराने वाले थे। उन्होंने पक्के कमरे बनाए, फिर मंदिर बनवाया, फिर नाट मंदिर बनवाया, फिर साधु निवास बनाया, ठाकुर जी को लाया, तो वो हटने वाले नहीं। तो वहां पे परम पूज्यपाद श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने जो घाट है, नौका घाट, जिसको हुलूर घाट बोलते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था, उस पे लिखा था ईशोद्यान मायापुर। तो वो जो दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोग थे, उनको इस बात से भी चिढ़ थी कि ईशोद्यान इन्होंने कैसे लिख लिया। तो उन्होंने उस बोर्ड को भी वहां से हटाया और गवर्नमेंट को बोल के एक मील पत्थर लिखवा दिया, हुलर घाट 0। बहुत कोशिश की, लेकिन जो लेटर आती थी हमारे मठ की, परम गुरु जी की, वो पोस्ट ऑफिस योगपीठ के पास है, उसमें लिखा होता था श्री चैतन्य गौड़ीय मठ ईशोद्यान मायापुर। तो उन लोगों को ये भी सहन नहीं हुआ, उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जाके अर्जी दे दी कि ये ईशोद्यान नाम नहीं है, गलत जबरदस्ती लिख रहे हैं, इसको हटाइए। तब पोस्ट ऑफिस वाले ने इंक्वायरी की, यहाँ तक कि कलकत्ता हमारे बड़े मठ में भी वहां जाके उन्होंने इंक्वायरी की। तो हमारे परम गुरु महाराज जी ने उनको बड़े अच्छे से समझाया, कैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया कि मायापुर में कहाँ पे ईशोद्यान है। तो वो लोग फिर समझ गए और फिर वो ईशोद्यान स्थापित हो गया। तो कोई भी श्रेष्ठ कार्य में विघ्न आते हैं, और यहाँ भी आए, नेचुरल सी बात है, इट्स बट नेचुरल। Whenever you are going to do something bigger, there will be obstacles. That is the nature. Human nature is to create obstacle in the path of spiritual seekers. That's a problem. There is envy, there is jealousy, there is irsha, suya. That is why anyone who has envy, jealousy cannot progress in spiritual life. हमारे षड गोस्वामी अष्टक में उनके बारे में लिखा, निर्मत्सरो पूजिजो। तो निर्मत्सर यानी ईर्ष्या रहित, कोई मात्सर्य नहीं, ऐसे षड गोस्वामियों जो के चरणों की हम वंदना करते हैं। भगवान ने गीता में कहा
18वें अध्याय के 67 श्लोक के बाद कि किसकी योग्यता है गीता सुनने की, तो उसमें लिखा जिसके अंदर जेलसी है उसको ये गीता नहीं सुनाना, क्योंकि वो समझेगा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगी। क्या बात है। और भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने इसके बारे में लिखा कि जिस व्यक्ति के अंदर मात्सर्य है उस भागवत को वो नहीं समझ पाएगा। तो ईर्ष्या मन को दूषित करती है और ये ईर्ष्या हमें भक्ति में बाधा देती है और हम वैष्णवों के चरणों में अपराध करते हैं। इसलिए बार बार हमको वैष्णवों के चरणों से माफी मांगनी चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ना जाने कौन से वैष्णव के दिल में हमने चोट पहुंचा दी, किसको हमारी बातों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कष्ट हुआ। मैं उन सबसे क्षमा मांगता हूं, मैं उनसे सबसे बार बार क्षमा प्रार्थना करता हूं, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा मांगता हूं ताकि मेरे अपराध वो क्षमा करें, जाने अनजाने। इसलिए ईशोद्यान श्री धाम मायापुर में जब मठ की स्थापना हुई तो इस प्रकार की बाधाएं उपस्थित की गई उन लोगों के द्वारा। तो जो हो, परम गुरु महाराज जी ने, उनका बहुत बड़ा विजन था, कितना विशाल जगह लिया, मतलब उसका नाम ही बड़ा मठ है। मायापुर में गौड़ियों मठ में उसको माधव महाराज जी का मठ भी बोलते हैं और बड़ा मठ भी बोलते हैं। बाद में इस्कॉन आया, इस्कॉन को भी परम गुरु महाराज जी ने वहां पे हेल्प की, सारी सपोर्ट दी, उनके लोगों को अपने पास रखा, उनके ब्रह्मचारियों को अपने आश्रम में ट्रेनिंग दी और वहां से रह के उन्होंने मायापुर इस्कॉन की डेवलपमेंट की। इस बात को वो आज भी एक्नॉलेज करते हैं, हमारे परम पूज्य पताका महाराज जी और दूसरे उनके गुरु भाई लोग। तो परम गुरु महाराज जी का हृदय बड़ा विशाल था, उनका विजन बहुत दूर का था। He had a great vision. That is why he established such a big mutt in Shridham Mayapur. And he has given in his future scheme to establish Sri Chaitanya University in Mayapur. That is why he had such a big chunk of land for establishing a spiritual university campus in Mayapur. And one day it will come true by his causeless mercy, by his blessings, by Gurudev's blessings. परम गुरु महाराज जी ने मायापुर में एक औषधालय भी खोला, डिस्पेंसरी खोली, धर्मार्थ, जिसमें कोई निशुल्क लोगों की चिकित्सा की जाती। और इसके साथ साथ परम गुरु महाराज जी ने मायापुर में एक संस्कृत विद्यापीठ की भी स्थापना की। टू प्रीच संस्कृत, a Sanskrit school was started by Param Gurudeva in Mayapur because Sanskrit is the language of all Vedic literature. So anyone who is a spiritual seeker must know Sanskrit. And it's a language which is the origin of all the languages of the world. So Param Guru Maharaj established Sanskrit school and a dispensary, charitable dispensary in Mayapur. तो हम लोग मायापुर में जब परिक्रमा के लिए जाते तो गुरु महाराज जी हमको ये सारी बातें सुलाते थे और कैसे 1957 से लेके 1978 तक हर साल
16 कोसीय नवदीप धाम परिक्रमा हमारे दादा गुरु करवाते, और किस प्रकार उस परिक्रमा में सब उनके बड़े बड़े जो दिग्गज वैष्णव महात्मा जुड़ते, सब लोग उनके साथ परिक्रमा करते। तो ये सारी बातें गुरु महाराज जी हमको बतलाते। मुझे तो ऐसे लगता था कि जब गुरु महाराज जी मायापुर परिक्रमा करवाते, तो किसी भी जगह पे जब वो लेके जाते, तो वहां पे क्या होता कि मायापुर परिक्रमा, whenever our Guru Maharaj used to take us to different places in Mayapur, he will narrate the significance of that particular place. He will narrate in a manner that will give you a feeling how much reverence Guru Maharaj had for his Gurudev, how much love and affection and respect and regard our Guru Maharaj had, deep sambandha, relation, loving relation with his Gurudev, his spiritual master, our Param Guru Deva, that wherever he will take us in Mayapur, he will explain how Param Guru Maharaj used to do all those transcendental pastimes in Mayapur. So he will explain how these particular pastimes of Param Guru Dev took place in different places of Navdeep Dham. So our Guru Maharaj explanation of Navdeep Dham Mahatam will be based on only on our Param Guru Maharaj pastimes, his explanation. And I will feel he's going deep into his memory and is remembering when he was accompanying Param Guru Maharaj doing all those parikrama. And that remembrance took Guru Maharaj in a different world altogether, and from that different world, he will explain those pastimes. So this was very wonderful experience. To be very frank, when I went in first 1986, when I first went to Mayapur Parikrama, I was not ready for anything. I was not eligible for anything, to understand anything. For me, those things were like out of this world, what was going on. Because there was language barrier, I don't understand Bangla. Except Gurudev, everyone was speaking Bangla. So I had only to speak to Gurudev. So I was just following Gurudev. And when Guru Maharaj will explain, he will take us to a paddy field. And in paddy field, paddy is grown, from where paddy produces rice. So it's always full of water, watery field. And in between you have like 2 feet dry track to move. So you're moving on that dry track with Gurudev, I am holding umbrella for Gurudev, and sometimes holding Guru Maharaj also, because it's difficult to balance on that small track. Both sides is water. And sometimes I have to enter water because there is less space. So to give space to Gurudev and holding a big umbrella, entering into water. So it was very out of this world experience altogether. And at that time, when Guru Maharaj will sit and he will say, this is Jagai Madhai Ghat, this is Mahaprabhu Ghat, this is Barakona Ghat. Here Mahaprabhu did this pastime, that pastime. So I used to think, what is this?
I don't see any ghat here. These are paddy fields. There is no ghat. So I was like not able to comprehend. But then I will see eyes of Gurudev. I'll see his eyes are having the realization, having the darshan. He's having the sight of those places he's explaining. So he's explaining from his divine realization. So then this thought came to my mind that if a pure devotee of Gurudev's stature is telling that this is Mahaprabhu Ghat, then this must be Mahaprabhu Ghat. It cannot be something else. Because this person has no business to tell a lie. So, because of the intensity of Gurudev's faith, we used to have belief that what is being told is actually there. अद्यापि नित्य लीला करे गोर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए. आज भी चैतन्य महाप्रभु वो लीला नवदीप धाम में कर रहे हैं, लेकिन कोई भाग्यशाली जीव उस लीला के दर्शन कर पाता है. टुडे ऑल्सो चैतन्य महाप्रभु is performing his transcendental eternal pastimes in Navdeep Dham, but only most fortunate can realize this, can see those pastimes. So this is how Guru Maharaj used to explain. And when we were walking barefoot on pebbles, on thorns, in fields, our feet are hurt and it's so hot on our head and below our feet. It's so hot. But there is no time even to think about this. Because all the time Guru Maharaj is doing kirtan. Dancing and doing kirtan. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. And Guru Maharaj is jumping. And to my surprise, I'm also following. I'm also jumping automatically. So when your feet are lifted from that hot ground, you feel relief for a fraction of a second. And then again, you fall on the same hot, thorny ground. And with reflex action, you just jump. And then you get relief. And then you fall down. Then you get relief. And you are doing Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. And sometimes blood is coming out of feet. And you don't understand what's going on. There is no time even to think about your feet. And no one could ever imagine to wear shoes because Guru Maharaj is not wearing any shoes in Mayapur. How can we wear? But this bodily, what you call small pain, small bodily trouble was nothing in comparison to when Guru Maharaj will say, this is Mayapur Dham. This is eternal abode of Chaitanya Mahaprabhu. And this is very, very sweet. There is no hotness. There is no trouble in this Dham. But why we feel it's hot here? Because our heart is full of lust. When we have lust inside, then we will feel Dham giving us hot temperature, all those things. But when the heart
is full of love for Chaitanya Mahaprabhu, love for Nitai Gauranga, then we feel the transcendental, pleasant Dhamma, that real eternal abode. So when we hear that, we used to be astonished. Oh my God, this is too much. So Guru Maharaj will say that there is no material sun shining here in Mayapur. Mahaprabhu himself has become sun and he is shining here. But for devotees, they can realize, and those sun rays are like moon rays for them. But for non-devotees, a person who have kama, who have lust, they feel scorching heat. So this way, we used to understand that Guru Maharaj is in a different world altogether. So हम लोग जो मायापुर नवदीप धाम की परिक्रमाएं करते थे गुरु महाराज जी के पीछे पीछे, उसमें गुरु जी की प्रेजेंस में इतना आनंद था कि हमें कुछ समझ में नहीं आता था कि पाँव में पत्थर लग गए, पाँव में कांटे चुभ गए, पाँव से रक्त निकल रहा है, जख्म हो गए, जख्म में फिर कुछ चुभा, फिर दर्द हुई। ये सब चीजें बड़ी गौण हो जाती गुरु महाराज जी के पीछे पीछे चलने के उसके मुकाबले। गुरु महाराज जी की परिधि में रहने से सारे दुख दूर हो जाते। गुरु महाराज जी की दृष्टि में जब हम रहते तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बरसता। छोटी छोटी बातें, गुरु महाराज जी की वाटर बॉटल लेके चलना, छतरी लेके चलना, उनका बैग लेके चलना, गुरु महाराज जी जहां बैठे महात्म बोले बैग में से ग्रंथ निकाल के देना, कभी ये सारी छोटी छोटी सेवाएं, आसन गुरु महाराज जी का लेके चलना, आसन रखना, ये जो छोटी छोटी बातें हमें इतना सुख देती कि शरीर को क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। और प्रसाद की तो ये व्यवस्था थी कि जब हम लंबी परिक्रमा करके मठ में आते तो शरीर इतना श्रांत क्लांत हो जाता, इतने थक जाते कि सीधे जाके मच्छरदानी के अंदर एकदम सो जाते। प्रसाद पाने का कोई ध्यान ही नहीं है। लेकिन हमने देखा गुरु महाराज जी के सेवा में थे हमारे बुधारी प्रभु परम पूज्यपाद तपस्वी महाराज, 86 की बात है, तो रात को हमें जगा के मच्छरदानी से मच्छरदानी हटा के अंदर पतल रख के हमको जबरदस्ती प्रसाद खिलाते। प्रसाद पाओ, जल्दी करो। तो हम सोए सोए प्रसाद पा लेते, भूख भी होती थी, थके भी होते थे, तो सोए सोए प्रसाद पा लेते। तो ऐसा वहां का साम्राज्य था, ऐसा आनंद था। और मैं आपको ये बताऊं कि मायापुर मठ में 1986 में पंखे नहीं थे, कोई फैन नहीं था, देयर वाज नो फैन, देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी बट देयर वाज नो फैन। सो और जब मायापुर में जब प्रसाद की लाइन लगती, सब लोग मिट्टी में बैठ जाते, तो इतनी बड़ी पत्तल देते, पत्तल में पहले नमक रखते, हरी मिर्च रखते, एक कटा हुआ नींबू रखते, फिर चावल, उसको अन्न कहते हैं, चावल का ढेर लगाते थे। तो चावल एकदम गर्म होते और उसमें से भाप निकल रही होती। तो उसके बाद आती दाल। उस समय जब दाल आती तो वो दाल नहीं दिखती थी, बस पीले रंग का पानी होता था, तो पानी उसमें उड़ेल दिया जाता चावलों में। अब उसको जितना आपको नमक चाहिए नमक मिलाइए और हरी मिर्च के साथ खाइए। तो मेरे सामने प्रसाद जब आया तो मैंने देखा सब लोग चारों तरफ महाप्रसादे गोविंदे कर रहे हैं, मैंने भी किया, जय घोष हुई। उसके बाद सब लोगों ने प्रसाद पाना शुरू किया, सब लोग भूखे थे, घपा गप सब लोगों ने प्रसाद पाना शुरू कर दिया।
अब मैं शुरू ही नहीं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं। जब मैं विचार मग्न हूं, अचानक मैं देखता हूं कि मैं पत्तल को देख रहा हूं, पत्तल के पास देखा कोई खड़े हैं। ऊपर देखा तो गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी मुझे देखने के लिए आए, तो बिल्कुल मेरे पत्तल के पास आके खड़े होके देख रहे हैं। तो वो समझ गए कि इसके लिए पहली बार है यहाँ मायापुर में प्रसाद पाना। ये जम्मू का बंदा है, इसको यहाँ के प्रसाद का अभी मालूम नहीं है। तो गुरु महाराज ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देखा। तो मैंने उठना चाहा, गुरु जी ने कहा, नहीं बैठो प्रसाद पाओ। तो मैं देखा कि बाकियों ने आधा प्रसाद खा लिया और मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है। तो गुरु महाराज ने मुझे इशारा किया पत्तल की तरफ, ये प्रसाद है, महाप्रभु भोग लगाया है, प्रसाद है। बस गुरु महाराज ने ये बात ऐसी कही, महाप्रभु भोग लगाया है, ये प्रसाद है। बस मैंने मुड़ के नहीं देखा उसके बाद जिंदगी में। घपा घप प्रसाद पा गया। महाप्रभु हमारे चावल खाते हैं, हम चाहे फुलके खाने वाले होंगे, लेकिन हमें तो महाप्रभु का प्रसाद चाहिए। इस प्रकार महाप्रभु को हमारे मठ में तो 2 टाइम चावल का भोग जरूर लगेगा, चाहे रात को फुल्का भी बनेगा, लेकिन महाप्रभु चावल खाने वाले हैं। तो हम लोग भी, मेरा टेस्ट बड भी चेंज हो गया सारा, और मैं पूरी तरह वहां का जो प्रसाद के वातावरण में, हालांकि उस समय इतनी सिंप्लिसिटी थी, प्रसाद में 1-2 आइटम बस, दैट्स ऑल। और बहुत बड़ा भंडारा होने से खीर, दैट्स ऑल। तो बहुत ही सिंपल प्रसाद होता था, लेकिन उसमें आनंद बहुत होता था। So in those days, we used to take very simple, very humble prasad during Navdeep Dham Parikrama. And I was not used to that kind of rice and dal prasad, because I belong to Jammu and I have different kind of food here. But when Guru Maharaj said this is offered to Mahaprabhu, Mahaprabhu has accepted this bhoga, so it has become prasad of Mahaprabhu. So we should take it. So that gave me so much intense feeling about prasad that I started taking it very fast. And I never ever complained of anything. But now things are very comfortable, and now prasad is like royal prasad. But those days it was very, very humble. And Guru Maharaj used to say, in the beginning, when they established Sri Chaitanya Gaudiya Math, they used to beg from vegetable market, and these vendors, the hawkers, they used to give them little vegetable, and that vegetable sometime was rotten. So they used to, like, they have one potato, so half potato is rotten, they will cut the half, and rest of the half they will cook. So finally, with different vegetables, they will cook one mixed vegetable, and when it is ready, the color will be black, and they say it is lafra. And that was the time when Guru Maharaj joined our mat. And in Ekadashi, the prasad was so humble that Guru Maharaj said they will not give the complete fruit. They will give 2 pieces of orange, 2 pieces of grape, 1/4 of a banana, 1/10 of a cucumber. So Guru Maharaj, little potatoes. And Guru Maharaj say, we used to take it, and then we used to think it's better to fast completely. What is the use of taking this? Because the stomach remains empty even after taking this little one. So those were the days of such hardship, struggle.
This is how they established Mahaprabhu's preaching in the beginning. So those were the days. So yesterday we hear about uh, establishment of our Mayapur Mutt. Today I will start how Gwalpada Mutt was established by our Param Gurudev. So Gwalpada Mutt was established by Param Guru Maharaj in 1969. And there is a history. History is that Gwalpada is in northeast of India, in Assam state, and you have to go to Guwahati airport to reach Gwalpada. And then from Guwahati, you go by road to Gwalpada. It's on the bank of Brahmaputra. And there we have our Sri Chaitanya Gaudiya Mutt branch. And the deities are Shri Shri Guru Gaurang, Shri Shri Radha Damodar Ji. So in the biography of our Param Guru Maharaj, our Gurudev has mentioned the name of the donor of the land. His name is Shri Sharat Kumar Nath. गुरुजी ने लिखा कि ग्वालपाड़ा के बलबला ग्राम निवासी स्वनाम धन्य स्वधर्मनिष्ठ व वदान्यवर सज्जन श्री शरद कुमार नाथ महोदय जी ने ग्वालपाड़ा क्षेत्र में शुद्ध भक्तों के माध्यम से कलयुग पावनावतारी श्रीमन महाप्रभु जी के द्वारा आचरित व प्रचारित शुद्ध भक्ति सिद्धांत वाणी के प्रचार प्रसार का अनुभव किया और मठ के लिए लगभग 1 एकड़ जमीन दी। अब उस जमीन में 2 मकान बने हैं, जिसमें सब इलेक्ट्रिक लाइट लगी है, 2 सैनिटरी शौचालय हैं, 2 रसोई घर हैं, बड़े छोटे मिलाकर 8 कमरे हैं, 1 ट्यूबवेल है। इस प्रकार ये सारी प्रॉपर्टी शरद कुमार जी ने हमारे परम गुरु महाराज जी को दे दी। तो उनके बारे में गुरु महाराज जी ने कितने विशेषण लगाए, आप जस्ट इमेजिन करिए। मैंने और किसी के बारे में इतना कुछ नहीं सुना। गुरुजी कहते हैं स्वधर्मनिष्ठ स्वनाम धन्य वदान्यवर सज्जन, ये 4 विशेषण गुरुजी ने बोले। श्री शरद कुमार नाथ महोदय जी ने ये 15 दिसंबर 1969 को उसकी रजिस्ट्री हुई। तो गुरु महाराज जी ने ग्वालपाड़ा की सुंदरता के बारे में लिखा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित मठ का दृश्य अति सुंदर लगता है। शहर भी काफी साफ सुथरा है। इसके अलावा भविष्य में अलग से मंदिर व साधु निवास की जरूरत पड़ने पर उस जरूरत को पूरा करने के लिए स्थान का अभाव भी नहीं। जब तक मंदिर इत्यादि नहीं बना था, तब तक मकान के उन्हीं कमरों में से एक कमरे को मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये जो हमारा मठ बना ग्वालपाड़ा में, उसके जो डोनर हैं श्री शरद कुमार नाथ, इनकी गुरु महाराज ने बड़ी प्रशंसा की। तो देखो, उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया संतों की सेवा करके। सो देयर वाज वन शरद कुमार in Gwalpada who donated his very big house, which had big land, 2 buildings, about 8 rooms, tube well, everything. He donated that to our Param Gurudeva, and Param Gurudeva established Sri Chaitanya Gaudiya Mutt in Gwalpada. Now, before this also there is a history. That history is our Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. He visited Gwalpada long back.
So Prabhupada went to Gwalpada, and during his time, there was a preaching center, Prapannashram, on the bank of Ganga, Brahmaputra in Gwalpada. So before our Guru Maharaj appeared in this world, that was 1924, Srila Prabhupada had visited Gwalpada, and a preaching center was established, Prapannashram. So after later in 1969, our Param Guru Maharaj established Sri Chaitanya Gaudiya Math in Gwalpada. So Gwalpada is very, very special, you know. तो ग्वालपाड़ा में हमारी मठ के बाद एक IAS ऑफिसर ने अपना घर जो था वो भी हमारे गुरु महाराज जी को दे दिया, और गुरु महाराज ने वहां पे डिस्पेंसरी बनवाई। तो ये 2 प्रॉपर्टीज होगी। और तीसरा जो है हमारे गुरु महाराज जी का जन्म स्थान। तो ग्वालपाड़ा शहर छोटा सा शहर है, वहां श्री चैतन्य गौड़ीय मठ, डिस्पेंसरी और गोकुल जन्म स्थान, ये 3 गुरु महाराज जी के स्थान हैं। तो ग्वालपाड़ा की इंपॉर्टेंस इसी से पता चलती है। हमारे गुरु महाराज जी, प्रभुपाद जी वहां पे गए, परम गुरु महाराज जी वहां पे गए, और गुरु महाराज जी के जन्म स्थान पे इतना सुंदर हमारा भव्य मंदिर बना, जिसकी अभी हमने आरती दर्शन की। अभी हम वहां अपने गुरु भाई हैं पतित पावन प्रभु, उनसे ग्वालपाड़ा जन्म स्थान के बारे में भी श्रवण करेंगे। इसीलिए मैं ये बैकग्राउंड को याद कर रहा था। तो जब तक पतित पावन प्रभु जी आते हैं, मैं उनको 90 में मैं गया, 1990 में गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी ने मुझे अपने जन्म स्थान का दर्शन करवाया। स्वयं वो जो पादुका पहन के जो लकड़ी की खड़ाऊं उस पहाड़ी पे लंबे रास्ते से गए, झरने के किनारे एक चट्टान पे बैठे, वहां पे उन्होंने अपने बचपन की सारी बातें सुनाई, शिव मंदिर दिखाया, कैसे वो शिव मंदिर, तब तो एक घास फूस का मंदिर था, नीचे शिवलिंग था और लगता था कि काफी प्राचीन शिवलिंग है। और गुरु महाराज जी कहते बचपन में मैं यहाँ आके शिव मंदिर में घंटों बैठ के साधना करता था। तो उस शिव मंदिर के नीचे ही गुरु महाराज जी का जन्म स्थान है। आजकल वो जगह एक गर्ल्स स्कूल है। तो उस समय हमको ये लगा कि गुरु महाराज जी का जो बर्थ प्लेस है, इस पे मंदिर बनना चाहिए, इसकी कोई स्मृति बननी चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी में परम गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी का बनाया, तो ग्वालपाड़ा धाम में भी हमको प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम लोगों का प्रयास ऐसे ही था जैसे उस टूनी चिड़िया का प्रयास जो समुद्र को सुखाना चाहती थी, या एक बोने व्यक्ति का प्रयास जो चंद्रमा को लपकना चाहता है। तो हमारे लिए तो बड़ा असंभव कार्य था, लेकिन हमने उसकी डुगडुगी बजानी शुरू कर दी कि गुरु जी का जन्म स्थान ग्वालपाड़ा हमको लेना है, हमको लेना है, हमको मंदिर बनाना है। तो डुगडुगी 1990 से बजनी शुरू होगी। और प्रेरणादायक थे हमारे परम पूज्यपाद भक्ति निकेतन तुरेश्वरी महाराज, उन्होंने बड़ी प्रेरणा दी। आप लोगों के गुरुदेव का स्थान है, आप लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार 90, 91, 92, 93 धीरे धीरे लोगों को इस बात की समझ में आनी शुरू हो गई कि गुरु महाराज जी के जन्म स्थान को यहाँ पे मंदिर के रूप में हमें बनाना है। तो हमारे जम्मू के श्री मदन लाल गुप्ता बहुत बड़े सेठ, और उनका और मेरा हरि नाम एक ही दिन हुआ था जम्मू में, गीता भवन परेड ग्राउंड जम्मू में। तो जिस दिन मेरा हरि नाम हुआ, मदन लाल गुप्ता जी भी मेरे साथ बैठे थे। उम्र में हम मेरे से बहुत बड़े थे,
लेकिन इस संबंध से कि हमारा एक ही दिन आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ हुआ, एक स्पिरिचुअल बर्थ हुआ, तो वो मुझे बड़ा घनिष्ठ मित्र की तरह ट्रीट करते थे। तो धीरे धीरे हम लोगों का आना जाना मठ में इकट्ठे शुरू हो गया। पहले तो नहीं वो मेरे साथ जाते थे, लेकिन 1990 में उनकी जो धर्मपत्नी का देहांत होने के बाद वो पहली बार मेरे साथ मायापुर परिक्रमा के लिए गए। और मायापुर परिक्रमा में उन दिनों जो हमारा किचन थी मायापुर की, वो जो किचन थी उसका छत टपकता था, पानी गिरता था। तो गुरु महाराज जी की प्रेरणा से गुप्ता जी ने पहली बार वहां उस छत की रिपेयर करवाई। यहां से उनकी सेवा प्रारंभ हुई। वो ऐसी सेवा प्रारंभ हुई, ऐसी गुरु जी की उन पे कृपा हुई कि उसके बाद वो सेवा करते चले गए। फिर उनको ग्वालपाड़ा के लिए मैंने बहुत हाथ जोड़ के विनतियां कर करके समझा समझा के मैं भी उनको आसाम लेके आया। गुरु महाराज जी के साथ उनका जन्म स्थान दिखलवाया। बस उनके दिमाग में ये बात आ गई कि जन्म स्थान की सेवा करनी चाहिए। So when our Madan Lal Gupta ji from Jammu was convinced that he has to do something for the birthplace of our Guru Maharaj in Gwalpada, so he started contributing for having that place. But as I told you, always there are obstacles in great causes. There are obstacles. Everything is not so smooth in spiritual world. So we could not construct the temple unless we have the way to that Shiva Mandir. And there was no way because this Shiva Mandir was on a hill, and from road to Shiva Mandir, there are only residences and a school. So we cannot just jump over the residences and go to that Shiva Mandir. So there was no way we could enter that place. So to get that place, it was a long struggle, which was helped by our Guru Maharaj. And that all story, our Patit Pavan Prabhu is going to tell us. He's ready in Gwalpada. So we'll request Patit Pavan Prabhu to हरे speak. कृष्णा प्रभु 2 मिनट लगेंगे, वो जरा आ रहे हैं। Okay. So till he comes, let me tell you the background. That there was one police officer who was having that chunk of land on the entry point to the birthplace of Gurudev. So unless we have that chunk of land, we could not enter that land. But this police officer was not ready to give us that land at any cost. So he was always quarreling, fighting, and we were requesting him. Our Tapasvi Maharaj will go to him, our Avdut Maharaj will go to him, other Mahatmas of Sri Chaitanya Gaudiya Math will request him, please, 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 give us some little space to enter our Gurudev's birthplace. But he will not relent. So in this way, it was a long struggle, and our Guru Maharaj, causeless mercy, is working. There is a saying कि जीव कोटि वांछा करे, कृष्णेर इच्छा है फल धरे. So we have unlimited desires, but unless Supreme Lord Krishna wants, our desire will not be fulfilled. So unless our Guru Maharaj want, the desire for Gwalpada Janam Sthan cannot be fulfilled. So Guru Maharaj desire also entered our endeavor, and it was like our Cheshta and Guru Kripa. Very beautiful combination, and finally we got that place.
अभी मैं पतित पावन प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो ग्वालपाड़ा धाम की हिस्ट्री हमें सुनाए, जो उनका तो बहुत गुरु महाराज जी के साथ अनुभव रहा, तो वो सारी बात आप डिटेल में हमें सुनाइए। श्री पतित पावन प्रभु ग्वालपाड़ा धाम। जय हो। ओम चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य श्रुतिर्पुण्य ममामन्दमतिर्ग मत्सर्वस्य पदं आधा श्रीमद्बिंदरण्य कल्पतरुनाथ श्रीमद् रत्नाकर श्री श्री राधा शिलगु श्रीमान राशरसरं विभुंसि बट तटस्थित करसन वेणुसन गोपी गोपीनाथ वृंदावै तुलसी देव प्रिय केशव विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम बोलो परम दयाल गुरु महाराज की जय। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय गौरंग महाप्रभु की जय। आज हमारे लिए बहुत शुभ दिन है। वैष्णव लोग हमको याद किया, बोलছে বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখে তার দোষ, কৃষ্ণে গাঢ় প্রীতি হবে পাইবে संतोष। वैष्णव लोगों का कृपा मिलने से सब कुछ मिल जाते हैं। तो हमारा गुरु भाई है, हमारा लुम्बा प्रभु जी आज मेरे को बताया कि प्रभु जी आप तो ये जन्म स्थान हम गया था जन्म स्थान में, बोलते ये जन्म स्थान तो आप पहले से ही देखा। बोले हाँ हम तो पहले से ही देखा। हम जब 94 में आया ग्वालपाड़ा, उस समय तत्पर महाराज, उसका नाम था मधुसूदन प्रभु जी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो आज हम लोग गुरु जी का जन्म स्थान दर्शन करने के लिए जाएगा। तो हम उसके साथ गया, तो उधर तो जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। तो नीचे का जो एक आदमी है, वो लोग वहां पर एक टीना का छोटा सा एक टीना का घर था, शिव जी का वहां मंदिर था। तो वो लोग सुबह शाम वहां धूप पूजा पाठ करते थे। तो हम लोग उसके घर का ऊपर से हम लोग गया, और पूरा पहाड़ी सब जंगल है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था और कुछ नहीं था, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ था जैसा जंगल में होता है। तो मेरे को फिर बोला कि ये गुरुजी का समस्त जितना भी देख रहे हैं सब पहले गुरुजी का था, अभी तो सब दान कर दिया है, थोड़ा सा जमीन है। तो हम लोग वहाँ प्रणाम वनाम करके फिर हम लोग वापस आ गया। तो हम लोग का जो यहाँ एनुअल फंक्शन होता है फरवरी का पहला तारीख पहले और जनवरी का एंड में, तो उसी समय फिर हम लोग का यहाँ गुरुजी आया।
तो नगर कीर्तन गया, नगर भ्रमण करने के लिए, फिर वहाँ सब प्रणाम वनाम किया। तो हम लोग को उतना मालूम ही नहीं था गुरु जी का जन्म स्थान क्या है, ये देखा है उतना ही बस, जो वैसे ही से बोलता है हम लोग वैसे ही से करते गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद हम लोग सुना कि गुरु जी का ये जो जन्म स्थान में एक मंदिर बनेगा। तो कलकत्ता में सब बातचीत चल रहे हैं, उनका जो गुरु जी का जो भाई लोग है, बहन लोग है, वो लोग सब गुरु जी का नाम पे वो जमीन कर दिया। तो सुन ऐसे ही सुना। तो कुछ दिन के बाद फिर सुना कि हाँ गुरु जी का नाम पे सब कागज पत्र हो गया, आ गया। तो फिर लुम्बा जी आया देखने के लिए, ओपी लुम्बा, लुधियाना, लुधियाना, ओपी लुम्बा जी आए देखने के लिए। अब देख के गया तो वहां पर जाने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं था, रास्ता नहीं था। तो वो लोग आया, बहुत ये सब किया, जब इनके पास कैसे जाए। तो स्कूल, वो जो स्कूल का बीच में से एक रास्ता था। तो हम लोग सब बातचीत किया कि हाँ मंदिर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, सब बोलते बोलते वो लोग भी वो रास्ता को बंद कर दिया। कोई यहाँ से हम लोग रास्ता नहीं देगा, यहाँ आना जाना होगा, इधर हॉस्टल है, इधर स्कूल है, हम लोग का असुविधा होगा, तो हम लोग रास्ता नहीं देगा, फिर बंद कर दिया। उस समय तो फिर लुम्बा जी का साथ हाथापाती हो गया, लड़ाई हो गया। वहाँ का जो दरवान था वो धक्का दे के गिरा दिया, भागो यहाँ से। तो फिर ऐसा ऐसा किया, तो हम लोग घूम रहे हैं, क्या करें क्या करें। तो वो नीचे अभी जो गेट बना है, वो जमीन दूसरा एक आदमी का था, उसका नाम था माधव दास। तो वो लोग सुना, और मठ को ये अच्छा मानते हैं। तो वो लोग सुना कि गौरी मठ का यहाँ मंदिर बनेगा, उसका रास्ता नहीं मिल रहे। तो वो बोलता कि ये हमारा जो जमीन है, ये जमीन आप लोग ले लो, तो रास्ता तो इधर से हो जाएगा। तो लुम्बा जी, हाँ हाँ ये बात सही है। तो हम लोग सब उनका साथ बातचीत करने के बाद वो जमीन हम लोग खरीद लिया। वो पहले बोला कि देखो जमीन तो हमारा नाम पे है, लेकिन यहाँ पर जो एक कब्जा किया हुआ है उसको हम हटा नहीं पा रहे। अगर आप लोग इसको हटा सकते हैं तो ले लो, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले हाँ ठीक, कोई बात नहीं है, हम लोग हटा लेगा, कोई बात नहीं। तो उससे हम लोग जमीन खरीद लिया। जमीन खरीदने का बाद उसको बोलता भाई जमीन तो दूसरे का था, अभी हम लोगों का हो गया, अभी हमको जरूरत है, अब जाओ। वो तो बिल्कुल उसका पहले बोलता 10-15 साल वो कैसी लड़ा, बिल्कुल उसका तो किराया दिया ही नहीं है, कुछ दिया नहीं है। पुलिस वाला था, सेकंड ओसी, लखीपुर का थाना का ओसी था। वो केस देते हैं, फिर डेट चेंज कर देता है, डेट चेंज कर देता। वो साल तो चला गया। फिर दूसरी साल हम लोग का जब यहाँ एनुअल फंक्शन होता है, तो चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। तो चीफ गेस्ट को उसी समय अयोध्या रामदास, वो कृष्णाई कॉलेज का प्रिंसिपल, कृष्णाई में एक कॉलेज है, वो कॉलेज का प्रिंसिपल, उसका नाम है अयोध्या राम दास। उसको चीफ गेस्ट बुलाया। तो गुरुजी अपना कमरे में है, वो क्या लिख रहा था, फिर उन्होंने आ गया। आने के बाद गुरुजी बैठने के लिए दिया, बैठा, हम लोग वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो उसके बाद बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते उसी समय देखा गुरुजी हंस के बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पर एक जमीन है, ये लोग वो जमीन का बारे में कुछ बनाना चाहते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। तो कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन वो जो किराएदार है वो वहां से हटते नहीं है।
तो वो जो अयोध्या रामदास उन्होंने बोला गुरुजी कोई चिंता का बात नहीं है, ये जो डीसी जो है ना हमारा एकदम फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड है, आप कोई चिंता का बात नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, आप लोग ना कल हमारा साथ चलो, हम लोग सब डीसी के पास जाएगा। हाँ, डीसी के पास जाएगा। तो गुरुजी वो गोलोकनाथ था, उसको बुलाया। यहाँ पर नीरज दास है, गुरुजी का दोस्त है बचपन का, उनको बुलाया। ये नारायण वैश्य को बुलाया। सब ये करके बातचीत करके फिर प्रसाद वसाद लेके हम लोग वो अयोध्या रामदास को लेके डीसी के पास गया। तो डीसी वो बड़गोहाई बोल के डीसी का नाम था, बड़गोहाई। तो उन्होंने सब हम लोग को देखा, साधु आदमी है, ये सब ये है, तो सब बातचीत सुना। सुनने का बाद उनका कोई चिंता का बात नहीं है, हम एसपी को रेफर कर देते हैं। तो फिर एसपी का पिता माताजी हम लोग का मंदिर में आते जाते थे। यहाँ पर था वो साउथ इंडियन का ही है, लेकिन यहाँ पर उसका माताजी आया, हम लोग का यहाँ प्रसाद पाया। एसपी भी आया एक दो दिन, तो भक्त था। तो हम लोग फिर एसपी के पास गया, तो बोलता ठीक है, ये तो कानून ऐसा ऐसा है, उसको भी मालूम है, वो भी सेकेंड ओसी है, उसको सब मालूम है, ले हम कोशिश करेगा, ऐसी कोशिश करेगा। फिर 2 महीना ऐसा 1-2 महीना हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग डीसी के पास गया, तो बोला कोई चिंता का बात नहीं, हम तो बोल दिया वो कर लेगा। तो बोलता है कितना जमीन है, वो जितना मर्जी ले लो, पहाड़ी के ऊपर जितना मर्जी आप लोग ले लो। तो हम लोग का तो जमीन का जो ये है माप है, उन वो तो है ही है हम लोग का अंदर में। फिर और थोड़ा ज्यादा करके कवर कर लिया। वो जो पेड़ देख रहे हैं ना, बड़ा वाला खजूर का पेड़, वहां से और वो सब। लेकिन हम लोग का जो जमीन का जो कागज है, वो नाट मंदिर जो अभी बना, नाट मंदिर और हम लोग का गुरु जी का जो मंदिर, परम गुरु जी का नहीं है, गुरु जी का मंदिर, वो हम लोग का अंडर में है, उतना ही जमीन है, बाकी सब खास। तो उसके बाद अ, तो उसके बाद हम लोग का 2 महीना ऐसे ही कट गया। तो हम लोग एक दिन एसपी के पास गया, बोला ठीक है, हम उसको बुलाया तो वो आया नहीं है। फिर एक डेट दिया हम लोगों को, आप लोग इसी डेट में आप लोग आइए। तो वो एसपी को भी बुलाया, लखीपुर का जो एसपी है ओसी, उसको बुलाया। बुलाने का बाद हम लोग गया, तो बातचीत करते करते एक कैसा एक पॉइंट उन लोग का मालूम है, एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिलने का बाद ऐसा गुस्सा हो गया और दीपक एसपी इतना गुस्सा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं। हम लोग डर गया। उसके बाद उसको इंग्लिश में सब वो लोग बोला। बोलने का बाद तो 2 दिन के बाद हम लोग का टीलापाड़ा में जो मंदिर, पहले तो वहाँ कुछ नहीं था, टीलापाड़ा मंदिर में ओसी और लखीपुर का उन्होंने आया। आने का बाद हम लोग को बोलता कि देखो ऐसा ऐसा बात है, हम तो सोचा कि ये जमीन हम ले लेगा, इसीलिए हमको लेट्रिन बनाया, ताकि हम बहुत कुछ खर्चा किया, वो खर्चा अगर आप लोग दे दें तो हम जमीन को छोड़ देगा। हाँ, तो सस्पेंशन लेटर वो लोग बोला कि ऐसा वैसा बात है, एसपी एसपी को आप लोग कुछ बोलना नहीं है। तो वो सस्पेंशन लेटर लिखा था, उसका डर से वो ये कर दिया। तो हम लोग को बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग किसी को बोलेगा नहीं, आप जमीन छोड़ दो, जितना कितना बोलो। तो वो लोग बोला कि 50,000 हमको दो। तो 50,000 वो लुम्बा जी उसको लुम्बा जी लुम गुप्ता जी तो उस समय आए ही नहीं है।
पहले लुम्बा जी आया, लुम्बा जी चेक दे दिया, चेक देने के बाद संग संग हम लोग गया, जाके उसका जो सामान वामान सब वो हटा लिया, फिर हम लोग उसमें घुस गया। घुसने का बाद 1 डेढ़ साल का बाद फिर गुप्ता जी आया, लुम्बा जी आया, सब दे के उसके बाद प्रेम जी आया। अरोड़ा कौन आया? हाँ? एक अरोड़ा भी आया ना? प्रेम जी आया, ये तीनों आया। तो कुछ दिनों के बाद फिर अरुण अरोड़ा, अरुण अरोड़ा, उन्होंने आया, बहुत कुछ किया। फिर पराशर प्रभु जी आया, वहां पर तो प्रेम जी बहुत 2 साल, 1 डेढ़ साल था यहाँ पर, सब कुछ किया। फिर पराशर प्रभु जी आया, पराशर प्रभु एक बार तो वो जो गेस्ट हाउस वो टूट गया, क्योंकि वहां कोई पिलर नहीं है ना, रोड रोड नहीं है, ऐसे ऐसे बनाया, वो गेस्ट हाउस का वो सब टूट के गिर गया। फिर पराशर प्रभु आया, धीरे 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 वो जो रसोई बनते हैं वहां अभी, वो सब बनाया, ऐसा ऐसा किया। उसके पहले तो वो जो जमीन जमीन पहले बनाने के लिए तो फिर वो लोग लेबर लोगों को बुलाया, लेबर लोग को कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठेका में ले लिया, हम लोग ऐसा ऐसा करेगा, ठेका में ले लिया। तो ठेका में ले लिया, वो लोग को बोलता हम लोग सप्ताह पेमेंट करेगा लेबर लोगों को। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों से तो पैसा ले लिया, लेके वो भाग गया। फिर लेबर लोग रो रहे हैं, क्या करें क्या करें, हम लोग को खाने को मिलता नहीं है, पैसा नहीं है, वो नहीं है। फिर हम लोगों को सब पेमेंट करने पड़ा। फिर गुप्ता जी और लुम्बा जी वो लोग अपना खुद हाथ में ले लिया काम। लेने के बाद बोलता नहीं, अभी हम लोग लेबर चलाएगा, हम लोग पेमेंट करेगा। तो उसके बाद हम लोग को बोला कि भाई ये यहाँ का जो पत्थर तोड़ता है वो आदमी कहाँ मिलेगा। तो हम लोग यहाँ ढूंढ ढूंढ के वो बरपेटा रोड से हम लोग मिस्त्री लोगों को ले आए, मिस्त्री लोगों को ले आके यहाँ ये सब काम उम किया। काम करने का बाद अभी देखो कितना अच्छा मंदिर बना। का गेट कैसे बना? वो माता जी नहीं खाली कर उसके बाद तो वो जमीन तो ऊपर का हो गया, काम ऊपर चल रहे हैं। नीचे का जो जमीन हम लोग जब खरीदा है वो समय वो जो उत्तरा शर्मा का एक कमरा बनाया, हम लोग का जमीन का अंदर में 4 हाथ घुस गया, 4 हाथ। तो हम लोग बोला कि भाई, तो माधव दास को बोला कि भाई देखो जमीन तो हमारा ऐसा ऐसा है, तो ये जो बोलता उस समय तो ऐसी खाली पड़ा हुआ था, तो वो बना लिया। तो हम लोग बोले भाई हम लोग को तो बोले आपको जब चाहिए हम लोग तोड़ लेगा, आपको जमीन मिल जाएगा, कोई चिंता करो। जब उत्तरा शर्मा सुना कि सबको पैसा देके सब एक काम कर रहे हैं, पैसा देके जमीन खरीदा है, पैसा देके उसको पुलिस ऑफिसर को हटाया, इन लोगों का पैसा ही है, तो वो बोलते कि हमारा तो ये घर जब ये आप ये करेगा तो हमारा घर टूट जाएगा, तो क्या करें? बोलता हमको यहाँ पर एक कमरा बना दो, हम ये कमरा तोड़ेगा, नहीं तो हम तोड़ेगा नहीं। तो ऐसा-ऐसा बोला, हमने ये तो कोई होता ही नहीं है, एक कमरा बनाने के लिए। बोले ये जो हम लोग तोड़ रहे हैं इसको हम लोग बना देगा। ये तोड़ Gaudiya Math, our Patit Pavan Prabhu was telling us about the struggle, the hardship struggle which was undertaken to get the birthplace of Guru Maharaj at Gwalpada, because nothing is without struggle in spiritual life. You have to struggle a lot. So for getting this land, what kind of struggle was there? He was explaining this. And in the process, he was telling how everyone, under the causeless mercy, blessings of Guru Maharaj, struggle to get the birthplace at Gwalpada, and how ultimately we got the birthplace, we constructed a temple, and then 2007, Ramnami Vyas Puja was celebrated at Gwalpada,
birthplace of Gurudev, which is मिश्रा जी, हरे हाँ। कृष्णा। हाँ जी, ये पतित पावन प्रभु जी ने, आप नहीं थे, उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली, ऋषिगण है हम लोग जैसे अभी यहाँ सेवा कर रहे हैं, वो जो पहले जो थे गुप्ता जी, तो गुरु जी चाहते थे कि ये भी हम कुछ बंदर बने, तो वो गुरु जी की इच्छा से ही हुआ ये सब। ये पतित पावन ने लास्ट में बताया, आप जरा बताइए लोगों को। in a way, whenever we struggle for a higher goal, we get success only by the blessings, by the divine causeless mercy of Guru Deva. And this is proved in Gwalpada Dham, birthplace of Guru Maharaj, because all of us were struggling, we were trying. Shri Madan Lal Gupta ji, Shri Om Prakash Lumba of Bhatinda ji, and one engineer, Prem ji from Chandigarh, and there were all Vaishnavas of our mart. They were struggling to get the birthplace, and ultimately Guru Maharaj was so compassionate, he melted to see our struggle. They are endeavoring so much. So he blessed us, and when Guru Maharaj blessing came, everything was successful, and finally we got the place, and here we are. We have this Gwalpada. So that's a big teaching, because abode of Guru Deva is the highest abode for a disciple. You see, we have three prime abodes for our sampradaya. One is Shri Vrindavan Dham, Braja Dham. One is Jagannath Puri Dham, and then we have Navdeep Dham. So Vrindavan Dham, Nanda Nandan Shri Krishna, Radha Krishna, Madhur Bhav. Then Jagannath Puri Dham, Dwarkadhish, Jagannath, and then we have Navdeep Dham, the most munificent form of Supreme Lord, Chaitanya Mahaprabhu's abode, Navdeep Dham. So, more compassionate than these three is the Dhama, or the birthplace of Gurudeva, the abode of Gurudeva, which is Gwalpada Dham, which is his birthplace. And this was a beautiful struggle undertaken by the disciples of Guru Maharaj under the guidance of our Bhakti Niketan Turya Shrimi Maharaj, who also belongs to the same place, from Rabha tribe, from Maladhar, which is also in Gwalpada district. So he guided us, and other Vaishnavas helped us, and finally Guru Maharaj blessings joined us, and we got the success. So that is the way how we get it. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.